Good morning, students. Till date, we have completed the conic section. That means second degree equation in x and y. This second degree equation represents a pair of lines, circle, parabola, ellipse, or hyperbola. Now, we have done all these in terms of Cartesian equations. That means we use Cartesian coordinate system to locate a point. Cartesian coordinates system. In this system, as you know that, to locate a point, we consider two perpendicular lines, mutually perpendicular lines. One is horizontal and other is vertical line. The name of horizontal line जो क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है जो है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. एंड टू लोकेट अ पॉइंट, किसी पॉइंट की स्थिति बताने के लिए, suppose P is a point, then we draw the perpendicular. Let us suppose this point is N. This is x-axis and y-axis. So this is the center. This distance you consider x and this is y. So using two real numbers. One is on x-axis, that means horizontal line, and other is on y-axis, that means vertical line. We consider two distances. One is parallel to this line and other one is along this line or parallel to this one. So we write x comma y. X is a real number, y is also a real number. So the position of the point in xy plane is denoted by two real numbers. One is called x, other is called y. This is called x coordinate and this is called y coordinate. This is called abscissa and this is called ordinate. Again, if this point moves in this plane with some condition, then whatever we find the diagram, we name this one, and this was taught you in locus. It is already defined. So locus is nothing. This is the path of the point which moves under a given condition or conditions. Suppose I write x plus 2y equals to 3. Suppose I write x square plus y square equals to 25. Suppose y square equals to 4x. Suppose x square plus 3y square equals to 1. Suppose I write xy equals to 2. All these are Cartesian equations. What's the name? Cartesian equations. Because these equations are obtained with the help of this particular system, so we say these equations are Cartesian equations. Now, what does it represent? This is the line, this is the circle, this is parabola, this is ellipse, and this is hyperbola. Now, all these equations are in Cartesian form. So these equations are called Cartesian equations, and these are the Cartesian curves. But it is not necessary. There is another system. In that system, we people do not use this type of situation. We use the horizontal line only, and that horizontal line is known as initial line. So let us define this one. In this system, the system is known as polar coordinates system. Write it here.
polar coordinates system. ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे मैं लिखता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, I go to school. दोनों का जो अर्थ है वो सेम है, लेकिन कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है, बोलचाल की जो भाषा है वो डिफरेंट है, वो अलग है। ये लिखा है मैं स्कूल जाता हूं, यहां पर लिखा है आई गो टू स्कूल। दोनों का मीनिंग एक ही है। इसी तरह से हमारे पास में दो सिस्टम है, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। Suppose here I write x plus y equals to 5, and this is Cartesian equation of a line in 2D. Whatever we are doing in 2D. So this is Cartesian equation of a line in 2D. But if I write r equals to 5 upon cos theta plus sin theta. Suppose I write this. R equals to 5 upon cos theta plus sin theta. This is in terms of x and y. This is in terms of r and theta. Two variables. Here x and y. Here two variables r and theta. When the equation is given in terms of r and theta, this is called polar equation. That means in polar coordinate system, we locate the point in terms of r and theta. What is r and what is theta, we will discuss in previous class. You know this. Here x plus y equals to 5. This is the Cartesian equation. What is x and what is y? You people know that. X coordinate and y coordinate. Here it is r and theta. So we have some rules to change Cartesian into polar and polar into Cartesian system. Just like if the sentence is given in Hindi language, you can convert it into English language, and English language then in Hindi or any other language also, vice versa. In the similar way, equation of line is given in Cartesian. Equation of line, I don't know what does it represent, but if we simplify this one, I write it here. This is r cos theta plus r sin theta equals to 5. Remember, r cos theta is nothing, it is x, plus r sin theta is y equals to 5. Here also x plus y equals to 5, here it is x plus y equals to 5. So this is the equation of line in polar coordinate system. This is the equation of line in Cartesian coordinate system. So today our topic is polar coordinate system and how to find the equation of line, equation of circle, equation of parabola, equation of ellipse, equation of hyperbola in polar coordinate system. We will do all the things not in Cartesian coordinate system, we will do in polar coordinate system. So first we will try to understand what is the polar coordinate system, how to define a point in this particular system, and how to derive all these things. Okay, so let us continue.
I would like to discuss one more example. 2 upon r equals to 1 plus of theta. We people are habitual to recognize the equation when it is given in Cartesian system. हम लोग, हमारी आदत जो है, हम हैबिचुअल है, हम कंफर्टेबल है किसी कर्व को आइडेंटिफाई करने में जब इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होती है। हम हिंदी बोलने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं क्योंकि हमारा ये बेसिक लैंग्वेज है। इसी तरह से जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा हो, यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा हो, आप हैबिचुअल नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो इस इक्वेशन को मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करूंगा। जैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट होगी, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये किसकी इक्वेशन है। जैसे यदि आप इंग्लिश मूवी देखते हो और उसके हिंदी टाइटल्स या उनका हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा हो तो आपको बहुत इजीली समझ में आता है और आप उसको एंजॉय करते हो। बिल्कुल उसी तरह से so it is 2 upon r equals to 1 plus cos theta. This implies 2 equals r plus r cos theta. This is 2 r plus r cos theta is x. We'll discuss this. And it says r cos theta, you know that y is r sin theta, and this implies x square plus y square equals to r square. This is, now here it is technical, so I transpose x this side, so it is 2 minus x equals to r square. Then I write squaring both sides. If we square this, we find it is 2 minus x whole square equals to, it is this 2 minus x equals to r square. This is 4 minus 4x plus x square equals to r square. What is r square? That is x square plus y square. Find this y square equals to 4 minus 4x. And now remember, this is quadratic in y only. This is quadratic in y only. So you just recall, this is the equation of parabola. This is y square equals minus 4 times x plus 1. It is this. So this we can write y square 4x, where we have already done capital Y is y and capital X is x. Okay, so what does this equation represent? It is nothing. This is parabola. Okay, we people know this equation. This is second degree equation in y only, and this is reduced into the standard form. हमने पिछले जितने भी वीडियोस की है, 21 videos we have done, and in all the videos, if you go through them, then we have discussed the Cartesian equations and Cartesian equations and Cartesian equations and pair of lines or circle or parabola or ellipse or hyperbola. So I hope at this stage you are comfortable to recognize the given equation geometrically by calculating the value of delta and some others. So here this equation is the equation of parabola, but you people were given the equation in terms of r and theta. At this stage we don't know what does it represent. हम अभी नहीं जानते कि ये geometrically क्या देता है, तो हमने क्या किया कि इसको
कन्वर्ट किया इसमें कार्टेशियन इक्वेशन में, और जैसे ही कार्टेशियन इक्वेशन हमें मिली हमने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है कि मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, इसके अंदर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। यदि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आती है तो आप इजीली समझ सकते हो, अदरवाइज आपको ट्रांसलेशन में टाइम लगता है। इसलिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे, उसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला और लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब कुछ जो है वो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी में इसको ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। कई बार कैलकुलस के अंदर जब कैलकुलेट करना होता है, चाहे एरिया हो या लेंथ ऑफ आर्क हो या कुछ और बात हो, तो कैलकुलेशन जो है कार्टेशियन में कई बार कॉम्प्लिकेटेड बनती है, टाइम कंज्यूमिंग बनती है। लेकिन यदि पोलर कोऑर्डिनेट्स में यदि इक्वेशन दे रखी हो तो जो चीजें जो है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि टूल्स चाहिए। कई बार कार्टेशियन से बहुत इजीली हो जाता है, कई बार पोलर इक्वेशन से यदि हो तो उससे आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ठीक है। कई बार आपको हिंदी लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल लगती है, लेकिन कई बार हिंदी लैंग्वेज जहाँ इस इलाके में जाते हो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। बाय द वे आप साउथ में जाते हो, केरला, तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ इंग्लिश यदि आपको आती हो तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको दोनों सिस्टम आना चाहिए। आपको कार्टेशियन सिस्टम भी आना चाहिए और आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आना चाहिए। दोनों में देखना है कि इक्वेशंस किस फॉर्म में दे रखी होती है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सो लेट अस से इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम we consider initial line, that is the horizontal line, like this. It looks like x-axis, but it is not. Here it is. This is O, and suppose this is x. So this line is known as initial line. हिंदी में मैं लिखता हूँ प्रारंभिक रेखा। ये जो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट्स, इसको बोलते हैं। अब बाय द वे एक पॉइंट बी है जिसका मुझे पोजीशन डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को पोल से ज्वाइन करना है। एंगल फॉर्म होगा, उस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल को मैंने थीटा दिया, पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो लाइन है ओपी, इसको मैंने ध्रुवांतर रेखा या रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, और इसको ध्रुवांतर कोण एंगल बोलते हैं, इसको पोलर एंगल। सो दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज पोल ध्रुव। ये इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो r, ठीक, इस तरह से। ये ध्यान रखना, पॉइंट को जो पोल है, जब मैं पोल को पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में
एक्सिस में इस साइड जो है राइट साइड जो पॉजिटिव पार्ट है, साइड नेगेटिव पार्ट है। वाई एक्सिस में वर्टिकल पार्ट हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है डाउन वाला जो है अब पॉजिटिव लेते हैं और डाउन नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव। इसमें किस तरह से करेंगे, थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए मैंने एरो लगा रखा है, तो जहां ये एरो मार्क किया है मैंने, ये वाला जो हिस्सा है वो आर का पॉजिटिव है और डायरेक्शन थीटा की जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है घड़ी की विपरीत दिशा में जो है वो जो है पॉजिटिव लेंगे और ये बाय द वे डाउनवर्ड होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हो जाएगी वो जो है एंगल वो नेगेटिव होगा। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो r कॉमा थीटा, फिक्स्ड पॉइंट, इनिशियल लाइन, व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा, आपको ये ध्यान रखना। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। Locates the following points. Number 1, 3, 5. बहुत सिंपल है। बचपन में आपने डी की हेल्प से ज्यामिति के अंदर 4th 5th 6th 7th 8th में जब आप मैथ्स पढ़ते थे तो डी की हेल्प से, चांदी की हेल्प से, हिंदी में डी की हेल्प से आपने कोण बनाए होंगे, एंगल कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो आपको ध्यान हो ये एंगल है π/4 45 डिग्री, तो आपने कैसे किया होगा, ये बी को ये मैं इसकी शक्ल बना देता हूं, यहाँ पर ये बी है, इस पे एंगल मार्क किया होता है, ये 0 डिग्री यहाँ होता है, ये 90 और ये 180 बने हो। आपने लाइन ड्रॉ की, डी को रखा, ये इसका पॉइंट ओ है, 45 को यहाँ मार्क किया आपने, इसको हटा के फिर स्केल से इसको ऐसे ज्वाइन कर, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। दिस इज अब इसके लेंथ जो है वो इनफाइनाइट, आपको पॉइंट प्रूव करना है 3, 5/4। याद करो एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose base something 5 centimeters and so on, and at vertex A the angle is 45 degree and the adjacent sides is 4 centimeter। तो क्या करते हो, डी से एंगल बनाया है और यहां से 4 सेंटीमीटर का आप कट कर लेते हो स्केल की हेल्प से। सपोज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां दे रखा 3, π/4, तो यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज 1 2 3, ये मैंने यहां पर 3, ध्यान रखना इस लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो अलग अलग डिस्टेंस पे है, इसलिए ये जो पॉइंट होगा मेरा दैट इज 3, 5/4। याद ये वाला पॉइंट 4, 5/4, ये वाला पॉइंट 2, 5/4। एंगल सबका 5/4 है। क्या हो रहा है, यहां से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। अब बाय द वे सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, -2, 5/4। ध्यान रखना -2, 5/4। तो पहले π/4 का एंगल बना दो। अब एरो जो है वो ये देखो, ये ऐसे लगा, तो ये वाला पार्ट ओ से इस तरफ ये पॉजिटिव, लेकिन यहां पर आपको -2 दे रखा है, इस लाइन को बैक
जिस तरह से आपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव लेंथ और नेगेटिव विथ प्रॉपर साइन, कितना है -2, ये 1 यूनिट, ये 8 यूनिट. So this is the point. This is -2. ध्यान रखना एंगल π/4 ही लिखा हूं. दोबारा समझा. सबसे पहले एंगल को ट्रेस करो, पहले एंगल बनाओ रफली. डी की हेल्प से पहले एंगल बना लो. यदि पॉजिटिव एंगल है एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव है क्लॉकवाइज. डी को मैं उल्टा भी रख सकता हूं, से नीचे की तरफ घुमा भी सकता हूं और अपवर्ड डायरेक्शन. तो पहले एंगल बनाना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी है. उसके बाद एंगल जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, जो लाइन एंगल को बाउंड कर रही है, जो लाइन एंगल को बांधती है, जिससे एंगल बंधता है, वो लाइन पोल से पॉजिटिव डिस्टेंस देगा और उसकी जो बैक साइड जो होगा वो उसको नेगेटिव देगा. इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो -2, π/4 है. मैंने π/4 बना दिया. इसको देखते हुए क्योंकि ये लाइन इसको बांध रही है, मैंने इसको बैक लिया है क्योंकि मुझे ये नेगेटिव डिस्टेंस होता है. दिस इज -2, π/4. ओके. थर्ड लिख रहा हूं मैं. फॉर एग्जांपल एंगल मैंने वही रखा है लेकिन इसको मैंने नेगेटिव ले लिया. अब रिवर्स करता हूं. 3, -5. मैंने आपको पहले कहा था सबसे पहले एंगल, सबसे पहले मैं इस लाइन पर करूंगी. डी को समझने के लिए केवल ये दिया. यस, ये एंगल किससे बाउंड हो रहा है, किससे बंधा हुआ है, किससे बंद हो रहा है, इस लाइन से. इसलिए इस तरफ ध्यान रखना है कि ये सारे डिस्टेंसेस जो मैं यहाँ पर लूंगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगी और इसकी जो बैक डिस्टेंस आएगी वो नेगेटिव. ये नहीं, यहाँ पर 3 यूनिट्स पॉजिटिव, so it is 1 unit, 2 unit and 3. This is 3, -5. यदि मैं इसके बैक लेता हूँ, suppose this is 1, this is 2 unit, then this will be, the angle will be the same. Here it is -2 angle -5. एंगल किससे बंधा हुआ है, इस लाइन से. इस लाइन से एंगल बंधा हुआ है. कितना है, -π/4. इसके लिए भी यही एंगल काम करेगा क्योंकि यही लाइन है. इस तरफ इसकी जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी और इस तरफ इसके नेगेटिव पार्ट होंगे. तो -2, -π/4. दिस इज 3, -π/4. ओके, सो इट इज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. अब एक बात और नोट करते हैं. इसी पॉइंट को, जो यहां पर एक पॉइंट है, इसको अब एंगल को मैं बड़ा करता हूं. ये एंगल है ये पाई, क्योंकि ये π/4 है, ये भी π/4. तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/4, 5π/4. ये जो एंगल है, ये एंगल जो है 5π/4. ध्यान रखना ये एंगल 5π/4. यस. अब ये 5π/4 है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, देखो मैंने एरो यहां लगाई, पूरा इससे बंधा हुआ है. ये यहां से यहां तक ये बंधा हुआ है. तो ये जो लाइन है, ये वाला जो हिस्सा है, वो इस एंगल के लिए पॉजिटिव का काम करेगा और इसके लिए नेगेटिव का काम करेगा.
तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये हिस्सा जो है पॉजिटिव है, 2 यूनिट है, तो मैंने 2 लिखा। एंगल कितना है 5 पाई। इस सिस्टम में एक ही पॉइंट को कई तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूं, याद इस वाले पॉइंट क्या लिखूंगा, देखो ये वाला जो एंगल था, इसकी बात की है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये एंगल कितना है, एंगल तो 5/4 ही है। ये वाला इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला इसका नेगेटिव पार्ट होगा। ये नेगेटिव किसका होगा, ये इस एंगल के लिए नेगेटिव होगा, तो ये मैंने लिख दिया -4। ये इस साइड है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, किसके रेस्पेक्ट में 5/4 के रेस्पेक्ट में। ये लिखा मैंने 5/4। बाय द वे, केवल यदि मुझे इसको बनाना होता, केवल इसको यदि ट्रेस करना होता तो भी बात कोई होती। अब करके देखो इसे, कितना एंगल ट्रेस करना मुझे 5/4। ये 5/4 एंगल, ये रहा 5/4 एंगल, ये एंगल बन गया। डिस्टेंस जो r जो है वो नेगेटिव है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन केवल डायरेक्शन को शो करते हैं। ध्यान, ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। कितना यूनिट लेना मुझे 4, 1 2 3 and 4। दिस इज सेम। इस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन में सबको मालूम है, यदि मैंने लिखा है -2, 3, तो फर्स्ट जो है एक्स कोऑर्डिनेट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, 1 और ये 3 यूनिट अप, 1 2 और ये 3 यूनिट अप, ये यहां से ये पॉइंट, दिस इज P, दैट इज -2, 3। ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सबसे पहले एंगल को देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आर को देखना है कि पॉजिटिव है तो कैसे, नेगेटिव है तो कैसे। ध्यान रखना है एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो एंगल किससे बाउंड हो रहा है। पूरा एंगल यहाँ से ऐसे बाउंड हुआ है। यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे लेकर आता तो क्लॉकवाइज हो जाता, नेगेटिव हो जाता, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए आपको एंटी क्लॉकवाइज ही होना है। अब बाय द वे, इसके अंदर इस पूरे को मैंने ये राउंड कर दिया ऐसे। यदि मैं केवल इतना लिखता, ये यहां से यहां तक, तो आप देख सकते हो कि 5/4 है, तो ये 1 यूनिट है यहां से यहां तक। ध्यान रखना, मैं पिंक कलर की बात कर रहा हूं, पिंक की बात कर रहा हूं, इसके लिए ये 5/4 1, π/4, इसी को क्या लिख सकता हूं मैंने पूरा एक रोटेट कर दिया है, डिस्टेंस मेरा वही है, पूरा एक राउंड का मतलब 2π प्लस π/4, 9π/4 मींस 1,9π/4। ध्यान रखना, कलरिंग ये है पिंक कलर, ये यहां से यहां तक, ये 1,π/4 1,9π/4 घुमाते जाओ, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते जाएंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही पॉइंट को हम कई तरह से डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन में इसका यूनिक वे है, तो
आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने देखा है कि कार्टेशियन इक्वेशंस कैसी होती है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशंस क्या बनती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे और पॉइंट को हम किस तरह से लोकेट करते हैं। कल इसी को एक्सटेंड करेंगे। कल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्मूला आपको आता है, हम उसको पोलर के अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।